Manjari from Pop Diaries, and today we have a special guest who needs no introduction, especially in the digital world. Well, it is none other than BBK Wines, Eka Bhuvan Baum. Woo! Yeah. Hi, welcome on Pop Diaries. Thanks for having me. Thanks for having me. Yeah. So basically, we know that your new song is coming out, Raguzar. Yeah. Tell me something about that first, because music. So yeah, Raguzar is something. It's a love ballet. If you listen to the audio, तो आपको realize होगा कि ये एक लड़का लड़की के लिए गा रहा है. It's a typical love kind of a song, but the music video is completely opposite. It's about a father-son relationship. How a son is writing to a father that I'm sorry for what I've done. Now that you're not with me, I regret it. Oh, so it's a very different take on love. It's a different take on love. It's a different take on love. That's what Raguzar is all about. That's nice. That's Yeah. very nice. Yeah. And moving on from music side, I'll go on to BBK Wines. जी. So, how did the concept come about? BBK Wines has been like the concept and itself, it was all random. मतलब वो स्कूल के दिनों से ही कुछ था करने का. Is it true? Like, I have heard this. I don't know how true it is, but I have heard that you were just kind of, fiddling with the whole front camera, and suddenly just kind of an idea popped. ये लोग मुझे पूछते हैं कि आप एकदम कैमरे के साथ खेल रहे थे और वीडियो बन गया. मैंने कहा कि हम क्या आदि मानव थोड़ी हैं, कुछ कर रहे थे और हो गया. ऐसा कुछ नहीं है. आई न्यू व्हाट आई वाज डूइंग. आई वाज रिकॉर्डिंग अ वीडियो. वो आई डिडंट नो कि वो ऐसे हो जाएगा, ऐसा लोगों को इतना पसंद आएगा. हाँ, तो उसको बड़ा अजीब तरीके से लोग लिखते हैं कि वो खेल रहा था और वीडियो बन गया, एक्सीडेंटली वीडियो बन गया. ऐसा नहीं होता. वीडियो बना था एकदम सोच समझ के, बट वो एक्सीडेंटली चला कहीं और. दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. या Also, I want to ask you that while doing this whole BBK Wines, first of all, so we already know that you started your career musically, Yeah. and then you were singing in hotels and everything, so it was quite a struggle. Yeah. But I want to know that there was any hard-hitting kind of an incident that drove you with motivation and inspiration to do it? There was no any such hard-hitting thing in my life. It's always been all the experiences which I've gained throughout the journey. तो होटल का अलग एक्सपीरियंस था एक, फिर लाइव शोज़ का अलग एक्सपीरियंस था, पर्सनल फ्रंट पे अलग एक्सपीरियंस है. तो वो सब क्यूमुलेट हो के कंटेंट निकल के आता है. एंड इवन ट्रेजिडिक सिचुएशंस में से कुछ ऐसा निकल के आता है जो ह्यूमर में डालता हूँ मैं. तो इट्स लाइक थोड़ा बैलेंस्ड है, अजीब सा है लेकिन बैलेंस्ड है कुछ. In India, you are the first individual YouTuber who has crossed 2 million. How does that feel? Did you ever think that you will seriously go out there, reach out to so much of an audience? I mean, okay, I want to correct. It's 9. It's 9. It's now, not. yes, I have seen it now. Now it is huge. But I mean, you were exactly. You were the first one. I'll tell you really frankly. ठीक है. 1 million के बाद I think I didn't keep a track of it. 1 million के बाद, because first milestone is always special. Of course. उसके बाद के मिलियन नहीं देख रहा कोई. आपका पहला मिलियन होता है जो आपको अचीव करना होता है. 1 million 1 जब हो गया तब मुझे लगा था यही क्रेज़ होता है क्या, यही होता है क्या, इसके आगे कुछ नहीं है. देन आई लाइक अब काम करते हैं, अब ये सब हो गया नंबर सब. हाँ, मज़े में 1 मिलियन हो गए. अब लग रहा है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नाउ लेट्स डू समथिंग वर्थ पुटिंग आउट इन फ्रंट ऑफ पीपल. देन होते फिर करते. Now you're also doing a lot of collaborations with international artists, like the one that we saw with Amanda, that one, and Lily Singh as well. Yeah. So what was the experience of working with these artists? These guys are really professional. मतलब आपको इनसे मिलके लगता है कि एक तो पहली बात विदेशी हैं, बाहर के लोग हैं, तो उनका काम करने का तरीका अलग है. आप अपन थोड़े एकदम एनर्जी के साथ जाते हैं वहाँ करके काम आते हैं. वो लोग एकदम लेड बैक होते हैं. उनको पता है इतने टाइम में हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. अच्छा. हमें होता है ना कि जल्दी हो जाए. हाँ, क्योंकि हमारे अलग. हाँ, वी डोंट वांट टू. हाँ, कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो. फिर कौन लेके आएगा फ्लाइट. तो बट सही था. अमेंडा के साथ स्पेशली अच्छा था. तो करने गया था एक वीडियो, बट वी शॉट 4 वीडियोज़. ओह माय गॉड. तो वो एक्सपीरियंस अच्छा था. ओके. What is your dream collaboration? With whom? Dream collaboration? I don't think I have any dream collab with anyone. I want to work with every artist I adore,
and every artist I've been looking up to. So is there any favorite YouTuber that you absolutely adore? They're not YouTubers जिनको I admire. Okay. ये तो अपने community के हैं, सारे दोस्त लोग हैं, तो इनके साथ काम करने में मज़ा आएगा. But the people who I admire are from other fields. Like I wanna sit down and chat, not on camera. बस मिलने की इच्छा होती है ना किसी से. तो I always wanted to meet Nana Patekar. I always wanted to meet Mahesh Manjrekar. I always had इच्छा to meet MS Dhoni. I always wanted to meet कौन है वो, बहुत फेमस है, विजय राज. हाँ, तो इन लोगों से मिलने का काफ़ी इच्छा होता है. कोलैब के नज़रिए से मैं मिलना ही नहीं चाहता किसी से. बस ऐसे. हाँ, आप कैमरे के सामने आओगे, आप दो बातें इधर की करोगे, दो बातें उधर की करोगे, जो बात करनी है वो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि चार दीवारी के बाहर कुछ बातें जानी नहीं चाहती, कुछ. हाँ, समवन इज वॉचिंग यू, तो ऐसे होता है. तो इट्स बेटर कि आप कैंडिड बात करो ऑफ कैमरा, तब आपको वाला ज़्यादा सीखने को मिलता है. Also, now that you're also turning to Bollywood, okay, so I want to know who's your favorite Bollywood hero? Is it Nana Patekar or is it something? He is तो वो तो फेवरेट की लिस्ट में नहीं आते, वो फेवरेट की लिस्ट में नहीं आते. हाँ, बट फेवरेट में आई लाइक रणबीर एंड बस. And favorite director? फेवरेट डायरेक्टर आई लाइक इम्तियाज़, अनुराग सर. What is your current favorite song in the playlist from Bollywood or anywhere? करंट फेवरेट सॉन्ग Yeah. आजकल मैं वो बहुत सुन रहा हूँ, वो कौन सा है गाना, हवाएं. Arjit Singh. I like that song. That's my favorite also actually. You can't just get over that song. That song का कुछ और अलग है. True. I like that song. Also, I want to ask you about the YouTube platform. Okay, now there are a lot of traffic and a lot of content creators are rising. Okay, they are going viral and everything. But I want to know what are the challenges you are facing now. Like, are you facing any challenges right now because खुद of से ही हैं सारे, competition? सारे अपने से ही हैं, किसी और से कुछ मेरे को कंपटीशन चैलेंज कुछ नहीं है. खुद की रेस इतनी लंबी है, खुद से ही आप रोज. So every time you're trying to do a new video, you're just trying to build Every better. video has to be better than the previous one. If not better, then at par. आप खुद से ही लड़ रहे हो, आप दूसरों के देखोगे साला खुद का कुछ होगा नहीं आपका. तो it's better to concentrate on your own thing rather than looking at what others are doing. Yeah. As I think, okay, being a part of the social media as well, at a large part, what do you think about the trend that is coming up of trolling? You know, people try to troll anything that can be, humorous, sarcastic. मतलब कभी-कभार it becomes very mean also. What is your opinion on it? ठीक है, उनका काम है ट्रोल करना, वो उसकी चॉइस है कि वो किसी एनोनिमस आइडेंटिटी के पीछे ट्रोल कर रहा है. कोई भी ट्रोलर अपनी फ़ोटो लगा के ट्रोल नहीं करता, क्योंकि वो खुद इतना इनसिक्योर है कि मेरा चेहरा ना देख ले. आप खुद वो काम कर रहे हो जो आप डर रहे हो कि आपके साथ ना हो जाए. You're trying to be anonymous, but you're still doing it. ऐसे लोगों से तो आपको कोई डर होना ही नहीं चाहिए. अगर कोई आपको चेहरे पे आके कुछ बोल देता हो, आपको डरना चाहिए. अच्छा, पर कोई आपको अगर कीबोर्ड पे लिख रहा है गालियाँ, कोई कीबोर्ड पे आपका मजाक उड़ा रहा है, ठीक है, उसकी चॉइस है, वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता. What was the experience on dubbing this Deadpool 2 Hindi version? It was good, it was fun. मतलब मज़ा आया काफ़ी. कुछ एक नया एक्सपीरियंस था वो. हमेशा से मुझे कुछ करना रहता, अब हो गया तो बकेट लिस्ट, अब नहीं करना आगे. अब नहीं करना, अब ये काम वही करें जो इनके लिए बने हुए हैं. उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हो गया कि जो एक्चुअल प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, जिनकी रोज़ी रोटी है ये डबिंग करना, तो मैं शायद इस वाले में उनकी जगह खा गया डेडपूल वाले में. बट हाँ, बट आई वुडंट वांट टू डू इट अगेन. But you've checked it off. I've checked it off. कभी बोल सकूंगा ना, कभी Exactly. बूढ़ा हो जाऊंगा. बच्चों, डेडपूल 2 याद है? डेडपूल 2 याद है, उसमें मैंने थोड़ा कुछ किया था. Okay. Also on the upcoming Bollywood projects, I heard that you're doing a Bollywood project with Anurag Kashyap right now. नहीं, वो लोगों ने बना दिया. अच्छा. हाँ, क्योंकि मैंने फोटो डाल दी और सर ने फोटो डाल दी साथ में, तो लोगों को लगा प्रोजेक्ट बन रहा है. मैंने भी ज़्यादा छेड़ा नहीं. Bollywood projects that you're trying to do? No.
Are you बॉलीवुड है ही looking नहीं। towards doing anything in Bollywood? जब होगा अच्छा, तब so you just go with the आई flow. गो विद द फ्लो। अभी मेरा चार्ट एक हफ्ते का होता है, एक हफ्ते में क्या करना है अच्छा, कुछ नहीं पता, बाहर निकल के गिर जाए, कुछ सर पे मर जाए, किसी को क्या पता है। यू नेवर नो ना, आप कहाँ एक महीने का प्लानिंग लेके चल रहे हो, आपको यही नहीं पता। अभी फ्लाइट है मेरी रिटर्न की आपको कुछ नहीं पता। आप अभी का सोचो, आज का सोचो, मैक्सिमम हफ्ते भर का सोचो कि हफ्ते भर में ये करना है, बस ज़्यादा लंबा मत सोचो। as a very famous and popular YouTuber right now, we can say that. So now, as an experienced YouTuber, what will your advice be to other content creators? आपको एक चीज़ क्लियर आउट करनी पड़ेगी अपने माइंड में। यू आर डूइंग दिस फॉर सक्सेस, सक्सेस नहीं कहूँगा, यू डूइंग इट फॉर फेम, और यू आर डूइंग इट आउट ऑफ पैशन। अगर आप पैशन के लिए कर रहे हो तो प्लीज़ एक बात रियलाइज़ करना कि आपका कंटेंट लोगों तक पहुंचने में 5 दिन भी लग सकते हैं, 5 महीने भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। अगर आप 5 दिन में चाहते हो कि लोग हो जाए तो वो सक्सेस नहीं है, वो फेम की भूख है। अगर आप 5 महीने वेट कर सकते हो तो आप सोच रहे हो कुछ करने का। अगर आप 5 साल वेट कर सकते हो और आप कर रहे हो 5 साल तक वेट, तो इट्स डेफिनेटली सक्सेस एंड इट्स डेफिनेटली योर पेशेंस एंड इट विल पे बैक समडे। और आप ये मत सोचो कि उसको 5 दिन में फेम मिल गया, उसको 5 घंटे में फेम मिल गया। जो 5 घंटे में फेम कमा गए वो 5 दिन तक ही रहे। अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, इफ़ यू वांट टू स्टे इन पीपल्स हार्ट, देन यू नीड टू वर्क अकॉर्डिंगली एंड यू नीड टू कीप पेशेंस। जल्दबाजी में किया हुआ काम हमेशा बेकार। And what about the whole factor of dealing with internet criticism, which is like on a large scale too much? इंटरनेट इज ट्रांसपेरेंट। बॉलीवुड में आपको एक फ्राइडे होता है आपके पास, आपको एक फ्राइडे में पता लगेगा आपकी फिल्म हिट है फ्लॉप है। यूट्यूब पे आपके पास 10 मिनट है, 10 मिनट में आपका कंटेंट, आपका अगर वीडियो 5 मिनट का है, आपको 5.5वें मिनट में पता लग जाएगा कि आपका वीडियो कितने पानी में है। तो मतलब आपने जितना टाइम स्पेंड किया है वो सिर्फ 5.5 मिनट का आपको बताएगा। तो इंटरनेट इस मामले में इंटरनेट इज़ द फास्टेस्ट मीडियम एंड द मोस्ट क्रूअल medium. How do you deal with this kind of a It is a part of my job. It is a part of my job and every creator's part. Every creator's job. There has to be some kind of a mantra, na? Like this कुछ is मंत्रा what नहीं you है। keep it in your No, no, mind no, no. that- मंत्रा है ही नहीं। Keep in mind that you need to be prepared for everything. Okay. You can't say कि अगर ये चीज़ मुझे पसंद है तो लोगों को भी पसंद आएगी। ऐसा नहीं होता। ऐसे मेरे कई प्रोजेक्ट हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे, लोगों को एक नज़र नहीं भाई, बट दोज विल बी रियली स्पेशल टू मी। तो हमेशा ये मत सोच के जाओ कि आप आज मैदान में उतर रहे हो तो आप फतेह करके आओगे। मैदान में घुसो, जनता पे छोड़ दो, और अल्टीमेटली दे गोना बी व्यूअर्स। या Also, you do a phenomenal job. Okay, I feel you do a phenomenal job of making people happy. I mean, your humor, your wit, your sarcasm, everything is just like on point. It sometimes just clicks with everybody. So I want to ask you, like, what will you give the audience or your fans? What will you tell them in general of being happy or finding happiness in general? कौन सा advice होगा? To find happiness, Yeah. you can't find happiness in someone else. That's what I've learned. आप अपने आप को किसी और पे डिपेंडेंट मत रखो। सब सेल्फिश हैं। जो आज आपके हाय हेलो कर रहे हैं, जो आपको बहुत अच्छे से प्यार कर रहे हैं, वो शायद कल ना करें। तो खुद को ही प्यार करो, सेल्फिश रहो प्लीज़। Self-love. हाँ, सेल्फ लव इज़ द बेस्टेस्ट फॉर्म ऑफ लव। माँ बाप से थोड़ी बहुत बना के रखो, माँ बाप से प्यार करो, क्योंकि वही है अल्टीमेटली जो सच्चा प्यार देंगे। बाकी कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली पालो, गलत फहमी मत पालो। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप खुद से प्यार करो बस। अगर आपको सच्ची पीस चाहिए, किसी और में मत खुशी ढूंढो अपनी। That's very good. या Seriously, people need to learn about. या self-love. इवेंट मैं नहीं बोलूँगा तो इवेंचुअली खुद सीख जाएंगे। Experience दो will तीन be हाँ, fine. 2-3 ठोकरे Going खा के with they'll be you. fine, they'll be fine. Okay. Before I end this interview, okay, it would be absolutely incomplete if I don't ask you to sing a few lines of one of your tracks. Okay, So go for it. okay. आसमां के रंग देख ही रहा हूँ मैं, कभी नीला है, कभी लाल है, कभी पीला है, कभी नारंगी, कभी सतरंगी, कभी बैंगनी।
बातों बातों में कर बैठे मुलाकातें, तू ही तो है जिसे ढूंढती है मेरी आंखें। देखो कभी दाएं कभी बाएं, कभी पीछे कभी मेरे आगे, तेरी मेरी तेरी एक कहानी है, बातें कुछ अनकही कुछ बतानी है। शाम सवेरे तुझे ढूंढा मैंने, जाने किस किस गली, तेरी मेरी तेरी बातें पुरानी है। Thank you so much. much. It was lovely. Thank you. Seriously, it was lovely. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot for having us. Thanks for having me. Seriously. And guys, this was Manjari signing off from Pop Diaries. Until next time.